Welcome to KSW's live discussion. This is Mohsin Kamal, and I will be shortly joined by two special guests. So, in last few days, we broke two important pieces of news. One about the appointment of Paras Dogra, Himachal Pradesh batter, his appointment as a guest player in Jammu and Kashmir team, and second about the J&K squad for Buchi Babu tournament. To discuss both these, I will be joined by two veteran former cricketers of Jammu and Kashmir, Umar Alam and Abid Nabi. Both of them will be joining me shortly. Before that takes place, let me shortly give you the brief of how this discussion will run. So, as you all know, we at KSW had broken the news that Paras Dogra, the 39 years old cricketer from Himachal Pradesh, is going to join Jammu and Kashmir as a guest player, and he has been now officially confirmed as skipper for Jammu and Kashmir for the Buchi Babu tournament. JKC also announced a 15-member squad for the Buchi Babu tournament. This is a multi-day tournament which will be held in Tamil Nadu. We have the squad was available on KSW. The highlights of the squad are that it will be captained by Paras Dogra, and most of the top performers in trial matches are missing out from the squad. Most of the players who did well in trial matches were not even included in the 15. And also, interestingly, it was the Buchi Babu tournament is a red ball tournament, but unfortunately, JKC held just white ball trials for the tournament. I'm waiting for my guests, so you guys will have to wait a bit. Umar, can you hear me? आप सुन पा रहे हैं मुझे, उमर? I'm finally joined by Umar Alam, former Jammu and Kashmir cricketer. उमर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन तो पा रहा हूं, but मैं We lost him. He'll be back shortly. So, as I was saying, a couple of days ago, we broke two important pieces of news. One about the appointment of Paras Dogra as Jammu and Kashmir's guest player for the upcoming domestic season, and second about the Buchi Babu Invitational Tournament squad of J&K. And to discuss these, I was supposed to be joined by two former cricketers of Jammu and Kashmir. Both of them are right now struggling to get connected through, but I'm hoping they will be joining us shortly. The discussion will be around both of these topics, like is Paras Dogra's inclusion in Jammu and Kashmir team justified, or the squad for Buchi Babu tournament, is it like on what basis the players have been selected? But again, I'm waiting for my guests to join. Request your patience. Until then, you guys can send in your questions or something in comments so that we can begin. उमर, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बाद में आज हम बात कर रहे हैं। थैंक यू। तो उमर, आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा। प्लेजर। KSW ने कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज ब्रेक की कि पारस डोगरा जो हिमाचल प्रदेश के एक वेटरन क्रिकेटर हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर टीम को एज अ गेस्ट प्लेयर। तो आपके इनिशियल थॉट्स क्या थे इस डिसीजन पे? देखो, हम काफी टाइम से सुन रहे हैं और काफी हम देख रहे हैं कि मतलब गेस्ट प्लेयर्स प्रोफेशनल्स ला रहे हैं, बट माय पॉइंट इज ये प्रोफेशनल्स अभी जरूरत है हमारी स्टेट को। अगर हमारे पास वो सब ना हो, ऐसा प्लेयर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमें एक प्लेयर ऐसा चाहिए था। जब भी आप लाए तो हमारी बात ऐसी चल रही थी कि उसने इंडिया काफी टाइम खेला हो, वो हाईएस्ट लेवल पे खेला हो, उसने काफी, तो हम ड्रेसिंग रूम में वैसा एक फिगर चाहिए थे। हमेशा से हम चाहते थे कि जो हमें बोले इन सिचुएशंस को कैसे टैकल करते हैं और हाईएस्ट लेवल पे क्या होता है और इन प्रेशर सिचुएशंस में कैसे डील करते हैं। तो ऑब्वियसली देखो, आप अभी एक प्लेयर को लाए हो, नो डाउट ही हैज बीन अ वेटरन, कोई शक नहीं। मेरे साथ हमने जूनियर स्टार्ट किया है, इकट्ठे किया है, हमने सारे मतलब काफी टाइम काफी साल इकट्ठे खेला है।
तो अब ये टाइम आया ना, देखो ही इज 39 एंड यू आर गेटिंग हिम फ्रॉम पौंडीचेरी, तो ही इज नॉट प्लेइंग फॉर हिज own state right now. He was playing for Pondicherry last season. If we have the resources. You are leaving out Hinan Malik. It's my call, I should say. Hinan is not in the squad, and he has been doing correct. fabulously well, and he has been forming. He's a very good player. He's a sound player. He plays for my office. He plays for the corporate. He plays for CAG. He is doing fabulously well. No doubt he got injured last season, but after getting injured, he's very fit now. He's scoring runs, but you have left him out, and there is nothing he can do. एक प्लेयर जो भी आपने बाहर रखे हैं, आपके पास रिसोर्सेज तो है। हिनान ने जूनियर रन किए हैं, विजय हजारी में रन किए, उसने जहां भी अपॉर्चुनिटी मिली रन तो किए हैं। तो आप ऐसी चीज, ऐसे प्लेयर को लेके आए जो आप ऊपर जिताए सिंगल हैंडेडली, जिसने वैसा किया हो। पहले बात करते जब हम खेल रहे थे, मैं और आप खेल रहे थे, उन दिनों बात चल रही थी वसीम जाफर को लेके आएंगे। वसीम जाफर एक बड़ा नाम था, वसीम जाफर ने हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म किया था, तो इंस्पिरेशन चाहिए थी। आप समझ रहे हैं? करेक्ट। जो हमें आगे लेके चले, जो हमें बताए कि कैसे डील करना है और क्या सिचुएशंस आती हैं एक प्लेयर को। बट प्रॉब्लम अभी यहाँ है कि यहाँ तो कुछ और ही सीन है। मतलब आप अभी उसको ला रहे, पारस को ला रहे, नो डाउट वेटरन है वो, बट प्रॉब्लम है आप देखो कहां पे और किस सिचुएशन में ला रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी वेटरन्स हैं यहाँ पे, जिन्होंने हाईएस्ट लेवल पे काफी कुछ किया हुआ है, ठीक है। बट जो हम चाहते हैं, जो फिगर हम चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस चीज से हमें कोई ये होना है। आबिद, आपका भी वेलकम, फाइनली आप ज्वाइन कर पाए हमें। हाँ, तो आबिद हम इसी पे बात कर रहे थे, जो पारस डोगरा को अपॉइंट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर टीम में एज गेस्ट प्लेयर। तो आप जब 28 साल की उम्र में देवधर ट्रॉफी खेल के आए, डबल आवाज आ रही है, इको हो रहा होगा, अब सही से आ रही है? डबल आवाज आ रही है। आप अगर रिकनेक्ट करेंगे एक बार, क्योंकि उमर भाई आपको सही से आवाज आ रही है? मैं सुन पा रहा हूँ। मैं पहले लीव करता हूँ, फिर से वापस आता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तब तक उमर भाई आपके पास फिर से आऊंगा। आपने बोला कि अगर कोई वेटरन होता, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेला होता, तो वो अगर आता तो फिर भी प्लेयर्स के लिए इंस्पिरेशनल होता। तो ऑब्वियसली यस, मैं वो चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो बंदा आए जिसने खेला हो, जिसने हाईएस्ट लेवल अचीव किया हो, जिसने वहां पे देखो स्टारडम देखा हो, उसको पता हो सिचुएशन, और हमें एक इंस्पिरेशन मिले ड्रेसिंग रूम में। उसको देख के हमें, हमारे में भी अंदर आए कि नहीं हम लड़ सकते हैं, हमारे पास भी वो है। देखो वो प्रॉब्लम है ना। सी इफ यू आर लीविंग आउट परवेज रसूल, वेटरन हु हैज twice he has been the best all-rounder of the year. So मतलब how come you can pick him? मतलब you have to pick someone else जिसने किया हो 4-5 साल इंडिया रिप्रेजेंट किया हो, इंडिया के लिए रन्स किए हो, वो तो समझ सकता है इंसान। बट अभी और हमारे पास है प्लेयर्स जो कर सकते हैं। देखो मैंने एक एग्जांपल दी हिनान की, क्योंकि मैं उसके साथ खेला हूं। मतलब कोई मतलब किसी के साथ ये नहीं है, और भी प्लेयर्स हैं नो डाउट, बट मेरे सामने का ये है जिसके पास सब कुछ है, एंड विदाउट एनी रीजन यू आर लीविंग हिम आउट। मतलब वो कहाँ जाए, और यहाँ पे है भी क्या? और वो भी वेटिंग। हाँ, और पिछले 2 साल पहले हिनान मलिक को देखा गया था कि वो नेक्स्ट कैप्टन आएंगे फ्यूचर यस, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। फ्योर आपका जो जिसको आप बोल रहे हो कैप्टन हो सकता है, उसको आप ऐसे बाहर कर रहे हो, तो दिस इज अ सॉरी अफेयर। और वैसे भी आप देखो पिछले लास्ट टू लास्ट हमारे 2 सीजन के कहते गए हैं। मतलब स्टार्टिंग दिस सीजन लाइक दिस, मेरे को नहीं लगता है कि, और इससे ना कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है ना प्लेयर्स का। आप एक पूल ऑफ प्लेयर्स को कलेक्ट कर रहे हैं, आप उनको खिला रहे हैं, आप इनको अच्छा टाइम दे दो, परफॉर्म करने का ये दे दो। बट ये जो है अभी ऐसे निकालना मेरे हिसाब से जाती है एक प्लेयर के लिए, और व्हेन ही इज ओनली 23 और 24। आबिद आपके पास फिर से आऊंगा। तो मैं आपसे पूछ रहा था, जब आप 28 साल की उम्र में देवधर ट्रॉफी खेल के आए, तो आपको बोला गया था कि अब आप बूढ़े हो गए हो, अब आप रिटायर कर दो। अब वही लोग अभी जेकेसीए में बैठे हुए हैं,
वही लोग जेकेसी में अभी बैठे हुए हैं और वही लोग एक 39 इयर्स ओल्ड प्लेयर को एक दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट के लिए खेलने के लिए ला रहे हैं। तो आपका क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला कि पारस डोगरा जम्मू एंड कश्मीर टीम में एज गेस्ट प्लेयर आ रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। पहले तो पहली चीज जो आपने बात की थी, जब जो जैसे अभी सीएसी मेंबर्स है और मिथुन मनाज जी है वहां पे, और माजिद डार साहब है। जब मैं आपने अभी जो बात की थी 28 इयर्स की, मैं 28 भी नहीं था, मैं 26 ही था। जम्मू में हमारा कैंप चल रहा था और करीम साहब जो हमारे सीएसी मेंबर्स है और उनके साथ थे अश्विनी गुप्ता जी। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आप अब कहाँ फ्यूचर है इंडिया का 26 साल में ही। देख लीजिए आप, उसी वक्त मेरे पीछे पड़ गए थे कि 26 साल में ही मेरे को बोल रहे थे कि छोड़ दो, अब अपना फ्यूचर देख लो कोचिंग में, वो ये 26 इयर्स में। उसके बाद इन्होंने वही सीएसी मेंबर्स उन लड़कों को खिला रहे थे जो 36, 37, 38 खेल रहे थे। अब तो इन्होंने हद ही कर दी। जो इन्होंने, नो डाउट पारस मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, जोन एक साथ खेले हैं, बहुत क्रिकेट खेला है एक साथ। तो उसको आप 39 इयर्स में अपनी स्टेट नहीं खिला रही है, नो डाउट वो दूसरी जगह स्टेट से खेल रही है। और यहाँ पे 26 में मेरे को बोल रहे थे बाहर जाओ और 39 को वापस लाए। बिल्कुल। उमर आपके पास फिर से आऊंगा। पारस का अपॉइंट होना वो किस बेसिस पे, आपको क्या लगता है कि क्या क्राइटेरिया देख के, क्या देख के जो जेकेसी ने ये मूव लिया होगा? मतलब इसका क्या एक्सप्लेनेशन? दिस इज बिजार, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं इस राय पे। मतलब पिछले 2-3 साल से हम ट्राई कर रहे हैं कैप्टन, वी हैव बीन ट्राइंग, और जो ये पूल ऑफ प्लेयर्स हम अभी खिला रहे हैं ये काफी टाइम से मतलब खेल रहे हैं। आप कि इसमें कोई ये है, हाँ एक वो इंक्लूडेंस है नए फ्रेश, एक विकेट कीपर फ्रेशली लिया है, सक्षम है शायद उनका नाम, शिवम ऐसे विकेट कीपर को ले लिया। बाकी तो वही है, और आपने शुभम को लीड कराया, मुझे लगता है उसने परफॉर्म भी किया था। तो शुभम को आप फिर एज अ प्लेयर खिला रहे हो। शुभम पुंदीर को भी आपने लीड कराया, खजूरिया को भी लीड कराया, और हिनान को आप बोल रहे थे इज अ फ्यूचर कैप्टन। तो काफी चीजें हैं ना, मतलब जो एक हो रहे हैं, मतलब हम स्टेबल नहीं है। मतलब बेसिकली क्या है, इससे पता चलता है ना कि मतलब हम स्टेबिलिटी, मतलब जिसके लिए हम बोल रहे हैं कि प्योरली हम बना रहे हैं सीजन के काम कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग आउट कैप्टन, हम चाह रहे हैं कि लीड करे थ्रू आउट द सीजन एक अच्छा कैप्टन और जो रिलेट कर सके अपने प्लेयर से। यही बात चल रही थी ना जब अपने कैप्टन को हम चेंज कर रहे थे, टॉपिक चेंजिंग हो रही थी कैप्टनसी के नाम पे। तो यही बोला जाता था कि अपने प्लेयर्स ऑब्वियसली, मतलब जो एक ये रहता है ना आपस में जो लैंग्वेज है, वो ये नहीं होता आपस में, लैंग्वेज बैरियर है, या वो जो भी हम जिस मरहले से हम गुजरते हैं, या जो भी हमारे वो रहते हैं प्रॉब्लम्स या ये, तो उससे फेमिलियर रहता है कैप्टन, तो वो प्लेयर्स को अंडरस्टैंड करता है उस चीज में। लेकिन अब आप दूसरी स्टेट के प्लेयर को ला रहे हैं जो भी एक, मतलब वो खेल रहे हैं काफी स्टेट, अब वो प्रो खेल रहे हैं, वो अपनी स्टेट से भी नहीं खेल रहे। तो ये भी एक ये है। तो एज अ प्रोफेशनल आप प्लेयर, तो चलो अब तो कैप्टन ही हो, तो ये तो मुझे समझ नहीं आता। कुछ दिन रह गए हैं सीजन को, और जो प्लेयर साथ में खेले अब उनके साथ कैसे डील होगा और क्या उनमें ये रहेगा। जैसे अभी बाहर हो गए हैं हमारे प्लेयर, उनका भी मतलब वो क्वेश्चन मार्क है ये सिचुएशन से। तो दिस सीम्स वेरी बिजार, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा इस पे रिएक्ट कैसे करूं, क्योंकि जो हम पिछले 10 साल से जब हम खेल रहे थे तब से बात चल रही है कि वी विल गेट अ वेटरन, वी विल गेट एन इंडिया प्लेयर, वी विल गेट हु हैज डन फैबुलसली वेल एट द हाईएस्ट लेवल, बट बारिंग ऑल दोस थिंग्स वी आर सीइंग डिफरेंट सिनेरियो राइट नाउ। एंड इससे थोड़ा मतलब सिस्टम में भी ये लग रहा है कि फ्रेजिलिटी लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम भी एज पे नहीं है, मतलब जो पीछे हमने डिस्कशंस की हैं, या जो चीजें हम बोलते थे कि इसके ऐसी चीजें हम ले रहे हैं, तो उस चक्कर में यहाँ तो बोल रहा है दिस इज डिफरेंट सिनेरियो राइट नाउ। आबिद, आप बोल रहे थे इस पे। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ इसमें यार, मोहसिन भाई, जो अभी जो इन्होंने टीमें बनाई है ना, ये आपको मैं एक चीज अपने ही बता रहा हूँ। मैं अब JNK के रणजी ट्रॉफी को देख भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि 10 साल से वही खेल रहे हैं, 10 साल से हारे जा रहे हैं। जो टीम बनी थी, उस जो क्वार्टर्स में पहुंची थी, उसको तहस नहस करके अब इन्होंने टीम से 10 साल से एक ही लॉट को खिलाए जा रहे हैं।
जो अच्छे लड़के हैं उन्होंने वो कश्मीर का मैं जम्मू के भी दो चार नाम है मेरे को याद, उन्होंने सारा बेड़ा गर्क कर दिया इस J&K के क्रिकेट को। जो टीम इतनी अच्छी बनी थी उसको ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। कोई कुछ पता नहीं है क्या करना है इनको, क्या इनके दिमाग में क्या है, अच्छा तो नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज थी J&K में क्लब क्रिकेट होता था। उस क्लब क्रिकेट से लड़का परफॉर्म करता था और वो ट्रायल्स में आता था, ट्रायल्स मैच खेलता था और सिलेक्ट होता था। यहाँ तो किसी को कुछ पता भी नहीं होती है और टीम बनी भी होती है। अच्छा, ये कैंप के लिए लड़के गए भी होते हैं, कैंप खत्म भी होता है, तब लोगों को पता चल जाता है। तो क्या वजह है आबिद, क्या लगता है आपको, मतलब JKC ऐसा क्यों कर रहा है? और अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए वो तो खुद भी एक फॉर्मर क्रिकेटर्स थे, मिथुन थे, अब्दुल कयूम थे, माजिद, सब तो फॉर्मर क्रिकेटर थे। पहले बोल रहे थे कि क्रिकेटर नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में, तभी अच्छा नहीं हो रहा है। अभी तो फॉर्मर क्रिकेटर है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? मोहसिन, वही तो दुख है ना, वही तो दुख है, क्रिकेटर्स ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। मिथुन भैया को शायद गुस्सा भी आएगा इस बात पे। उन्होंने जब वो J&K से खेलते थे, उन्होंने उस टाइम पे J&K को छोड़ा था जब उसकी जरूरत थी। अब वो वापस आए, वो फिर से वही हो रहा है, J&K का क्रिकेट खत्म कर रहे हैं। J&K है ही नहीं कहीं पे। जहां J&K जिस लेवल पे पहुंची थी उस लेवल से बहुत नीचे आ गई है। इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, कोचेस की एक्सपेरिमेंट की, बाहर से प्लेयर्स की एक्सपेरिमेंट की, हर किसी चीज की एक्सपेरिमेंट की, मगर J&K का लेवल नीचे आ गया है। उमर परवेज रसूल, जो मतलब जम्मू एंड कश्मीर के सबसे बड़े खिलाड़ी रहे अभी तक, तो उनको बाहर किया गया JKC ने, और अभी बाहर से गेस्ट प्लेयर ला रहे हैं। तो ये क्या लग रहा है आपको कि क्या थॉट प्रोसेस क्या होता है इस सब डिसीजन मेकिंग में? क्या ये पर्सनल लेवल पे इन लोगों को, इन प्लेयर्स के साथ पीछे मैं वही कुछ था तो वो बात कर रहा हूँ ना, मैं आपसे वही बात की। मैंने देखो यही तो मैं बात कर रहा हूँ अभी। मतलब हम एक तरफ से देखो, वी हैव गॉट, फिर परसुल कोई वापस क्यों नहीं ला रही है? इफ यू हैव परवेज हियर तो उसी को ले आप चाहते ही हो ऐसे। उसको तो यही है कि ही हैज बीन अ वेटरन नाउ, चलो उसको अब उसका हो गया। बट अभी आप ला रहे हो उससे सीनियर प्लेयर को। पारस इज मच मोर सीनियर देन परवेज, तो ला रहे हो। परवेज हैज अचीव्ड अ लॉट, ऑब्वियसली ही हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया। तो फिर मुझे नहीं लगता, फिर तो वही है, फिर तो हम वापिस जा रहे हैं। तो ये तो खराब भी हालत हो रही है ना। वही तो मैं बात कर रहा हूँ, मतलब बात तो वही चल रही है यहाँ पे कि या तो हम एक स्टेबल इस पे रहे कि हमारा क्या है, मतलब हम क्या प्रूव करना चाहते हैं और क्या है अचीवमेंट्स हमारी। अभी आप वापिस लेके जा रहे हैं वही अपने, जो भी आपने मतलब सिलेक्शंस की है, जो भी आपने रिकमेंडेशंस की है, तो उन्हें ही आप गलत साबित कर रहे हो इस चीज से। तो आप एक तरफ से एक अपने जो भी हमारे स्टार प्लेयर हैं उसको साइडलाइन करके, तो यहाँ से तो ये चीज तो मतलब वही मैं बोल रहा हूँ ना, दिस इज बिजार। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है हम क्या सोचने जा रहे हैं और क्या है हमारा बेसिकली ये। आबिद, कोच से लेके स्पोर्ट्स स्टाफ तक अब प्लेयर भी बाहर से आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ कोचिंग, पिछले साल तक कोच सब बाहर से आ रहे थे, स्टाफ बाहर से आ रहा था, अब प्लेयर भी बाहर से आ रहे हैं। तो जो जम्मू एंड कश्मीर के प्लेयर हैं वो कहाँ जाएंगे? आप फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उमर फॉर्मर क्रिकेटर है ना, वो कोचिंग में आ रहे हैं ना वो सिलेक्शंस में आ रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे फॉर्मर क्रिकेटर्स? कहाँ जाएंगे? सबसे इम्पोर्टेंटली ये है ना कि कश्मीर के प्लेयर कहाँ जाएं। चलो जम्मू तो स्टिल यू विल सी, जम्मू का तो मैक्सिमम ये है, नहीं वो बट हमारे कश्मीरी प्लेयर्स कहाँ जाएंगे? ये तो प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है। देखो हम जम्मू वाले सारे जो अच्छे प्लेयर हैं वो कहीं ना कहीं पे है। कश्मीर के प्लेयर तीनों फॉर्मेट में से एटलीस्ट दे आर गेटिंग समथिंग। कश्मीर के प्लेयर जो जिन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है वो कहीं पे चलो अब अच्छा, मैं अपना बोलूंगा, क्रिकेट भी खत्म हमारे लिए। देखो मैं अपना बोलूंगा, मैं सामने मुंह पे सच बोलता हूँ तो वो मेरा किसी को पसंद नहीं आता है। ये पूरी दुनिया को, पूरे J&K को पता है। मैं मुंह पे बोल देता हूँ जो भी सच है। मेरे को JKC ने सिलेक्टर भी बनाया, टैलेंट का कोच भी बना दिया, क्योंकि मैंने सच बोला था। मैंने अच्छे लड़कों को खिलाया, अच्छे लड़कों को सिलेक्ट किया, वो इनको पसंद नहीं है। तो आप इस पे बात करेंगे। आप पिछले साल इन्वॉल्व हुए थे
ये नहीं, JKCA लास्ट में? टू लास्ट ईयर, मैं 2 साल से लास्ट मैं लास्ट जेके से गए नहीं। हाँ, लास्ट लास्ट मैं, ईयर आप मैं, इन्वॉल्व मैं हुए मेरे थे। को अपनी इज्जत प्यारी है, मैं 2 साल से नहीं गया हूँ। तो हुआ क्या था, आप जब टैलेंट हंट में इंक्लूड हुए थे एज सिलेक्टर और कोच, तो आपको क्या बताया गया ऐसा कि या ऐसा आपका क्या बुरा लगा JKCA को कि आप वहां से निकल गए? नहीं, ये मेरे को कोई बात इनको पकड़नी थी। लास्ट में इन्होंने बोला कि आपने 2011 प्रीमियर लीग क्यों नहीं खेली, क्यों खेली। तो मैं तो मतलब आपके कहने का ऐसा, मतलब है कि बिजबिहारा मैंने प्रीमियर लीग खेलने पे आपको मेरी बाहर पूरी किया? बात सुन लीजिए पहले, हम्म, मेरी पहले पूरी बात। बिल्कुल जब मैं बिल्कुल। अंडर 19 सिलेक्टर था, उसके बाद टूर्नामेंट हुआ, उसमें मैं कोच था। कोचिंग खत्म हो गई, अंडर 19 की खत्म हुई, तो उसके बाद मैं घर में बैठा था, तो 2011 प्रीमियर, उम्र मेरे साथ ही खेल रहे थे, 2011 प्रीमियर लीग लगी थी, मैंने वो मैच खेलने गया था। मैंने एक ही मैच खेला, उसके बाद मेरे को जेकेसी से कॉल आती है और बोलते हैं वहां पे जी आप एक्सप्लेनेशन आपको निकली है, आप इसका जवाब दीजिए कि आप 2011 प्रीमियर लीग खेलने क्यों गए हो। ये आप देखो सोच क्या है, हमारे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स है वहां पे, उनकी सोच देखो क्या है। मैंने अभी भी रिटायरमेंट नहीं ली है, मगर मैं खेल रहा हूँ, लोकल खेल रहा हूँ। मैंने कोशिश की थी अब मैं कोचिंग में आऊं, मगर ये सोच देख लीजिए हमारे एडमिनिस्ट्रेटर और सीएसी मेंबर्स की। वो बोल रहे थे मेरे को आपने लोकल क्यों खेला है। यार मैंने छोड़ा हुआ है, चलो मैं क्रिकेट जेकेसी ट्रायल्स में भी नहीं गया। इन्होंने तो पहले आपको पहली ही बात मैंने बोली थी, 26 जब मैं 26 ईयर्स का था, उस टाइम भी इन्होंने बोला था छोड़ दो। इनको मेरे साथ पहले से ही पंगा था। तो अब मैं कोचिंग में आया, तो वहां पे बोला अजी आप क्यों लोकल क्रिकेट खेलने गए हो। ये थिंकिंग देखो आप, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन क्या है जेकेसीए में, हमारे सीएससी मेंबर्स जो अब 3 साल, अनफॉर्चुनेट। अब तीसरे साल भी सिलेक्ट हुए हैं वो सीएससी मेंबर्स, उनकी थिंकिंग देखो क्या है। और सबसे बड़ी चीज जो इन्होंने लास्ट में मेरे को मतलब झूठ बोल के किसी, चलो वो उस बात को छोड़ दो। उमर उमर इसी बात पे आऊंगा। अब एक आबिद सिलेक्टर थे, कोच थे, तो इनको बोला गया कि आपने एक पर्टिकुलर क्रिकेट लीग क्यों खेला, और इधर से जेकेसी ने क्रिकेटर्स को लोकल क्रिकेट खेलने से भी बंद किया और खुद भी वो कुछ ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे। तो ये क्या है, ये मतलब तो मैं क्यों काफी हो रहा है टाइम से बोल रहा हूँ, मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ। देखो हमारे प्लेयर के पास कुछ नहीं है कि जाने के लिए, कहाँ पे जाए वो। प्रॉब्लम है, देखो अगर हमारा प्लेयर फेल होता है ऊपर लेवल पे, तो उसको कहीं पे कम बैक करने का ये नहीं है, रास्ता नहीं है। मतलब वो इधर अगर वो लकीली मतलब नजरों में आता है, वो परफॉर्म करता है या ले जाते हैं उसको, उसका सीजन ठीक जहां नहीं रहा वहां गया। और जो भी ग्रास रूट लेवल एक प्लेयर जो अपकमिंग प्लेयर्स है उनके लिए भी कोई नहीं है। जो हमारा क्लब क्रिकेट रहता था, आबिद की बात सही है, वो एक ए डिवीजन क्रिकेट था हमारा, जहां से प्लेयर्स निकले हैं, जहां से हम सब निकले हैं, जहां से हमारे जो भी अभी जेकेसी चला रहे हैं उसमें मैक्सिमम प्लेयर्स वो सारे के थे, वो भी उधर से ही निकले हैं। हमारे परवेज जो थे वो भी उधर से निकले, जो भी हमारे स्टार्स है, हमारा आबिद वहां से निकला। तो हम सब तो क्लब क्रिकेट से ही निकले, चलो वो भी बंद कर दिया। अब इनको बोला था वापस शुरू करने के लिए, वो भी अभी शुरू नहीं हुआ, तो हमारा प्लेयर जाएगा कहाँ। अब ये चीज है, देखो मेरिटोरियस प्लेयर जो भी है जिन्होंने किया है, दे शुड गेट अ चांस, दे शुड बी देयर। देखो आबिद के पास क्रेडेंशियल्स हैं, अभी काम कराए, स्कूल लेवल स्टूडेंट्स को कोच कर रहा है, ही इज डूइंग फैबुलसली वेल देयर, ही इज डूइंग फैबुलसली वेल इन स्पोर्ट्स काउंसिल। गेट हिम इन, इसको लाओ, इसको कराओ काम, इससे काम ले लो। ये बोलता हूँ, देखो टॉप प्लेयर जो भी है, समी भाई हैं, उनको ले लो, उनको लाओ काम पे लाओ। जो चीज डील कर चुके हैं ना, 20 साल क्रिकेट खेल चुके हैं मोहसिन, 20 साल इज अ ह्यूज टाइम। तो जो हमने देखा है ना, उस टाइम हमारा ग्रीन पैच पर्पल पैच चल रहा था हमारी स्टेट। हमारे पास बॉलर्स उस टाइम ऐसे 15 से 20 जो सारे नेक टू नेक थे। आप देखो हमारे फास्ट बॉलर्स कितने हैं, कितने बचे हैं। आप देखो कश्मीर का जोन किधर गया है, वी हैव गॉट ओनली 3 प्लेयर्स देयर इन मेकिंग टू द टीम। ये एक सॉरी अफेयर है कि हमारे 3 ही बच्चे हैं टीम में, तो बाकी कहाँ गए मुझे समझ नहीं आ रहा। सीजन में जो भी अच्छा है, खाली 3 बच्चे तो अच्छा नहीं कर रहे हैं ना, जूनियर में भी तो कुछ कर रहे हैं, उनको आप ऊपर लेके आओ। उनको देखो हमारा एक कोई नहीं बच्चा जानिब जावेद है, देखेगा। उसने पहले मैच में 8 विकेट लिए हैं, उसको ऊपर एटलीस्ट गिव हिम अ चांस। देखो बूची बाबू, जो बाकी टीम्स है ना, जो बाकी टीम्स लेते हैं ना, बूची बाबू का सिलेक्शन जो होता है ना, रेड बॉल क्रिकेट जो है ना, इसके लिए अपकमिंग प्लेयर जिन्होंने सीजन में अच्छा किया होता है ना, उनको लेके जाते हैं प्लेयर्स के साथ।
ये एक प्रैक्टिस होता है रणजी ट्रॉफी के लिए। ये एक प्रैक्टिस ये है, बिल्कुल टीमें जो जाती है ना वो एक आइडियल सिचुएशन चेक करती है, हमारे प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करेंगे उधर, तभी वो रणजी ट्रॉफी में जाते हैं। ये इसीलिए इस सीजन में स्टार्ट होता है टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी से पहले तभी होता है कि हम प्रैक्टिस कर सके, और जूनियर जो जिन्होंने अच्छा किया होता है ना उनके लिए आइडियल चीज है कि उनको मौका दो, उनको खिलाओ, उनको चांस दो। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि हमारे बच्चे कम से कम हो रहे हैं जो अब नीचे। देखो इतना तो नहीं है कि हमारा बच्चा 19 में भी अच्छा नहीं कर रहा, 23 में भी अच्छा नहीं कर रहा, उनको लेके जाओ, एटलीस्ट इंक्लूड 2 to 4 गाइस, उनको भी दे दो एक रन, क्योंकि इसमें रहते हैं 2 लीग मैचेस रहते हैं, फिर नॉकआउट्स रहते हैं। तो हमारे पास जब हमारे स्टार प्लेयर्स के साथ वो खेलेंगे तो ऑब्वियसली उनको भी सीखने को मिलेगा ना। आगे तो ऑब्वियसली ये चीजें तो ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं सीजन बहुत बड़ा है, खाली यही 15 तो नहीं खेलेंगे, खेलेंगे तो बहुत सारे, लेकिन मेरे हिसाब से आपके जो टॉप प्लेयर्स है ना उनको आप रेस्ट भी दे सकते थे। इसमें आप जूनियर को खिला सकते थे जो अच्छा करेंगे, फिर जो हमें भी पता चलता कि वो कैसे है उनको हम सीजन में ट्राई कर सकते हैं। आबिद, जब आप खेलते थे तब जम्मू और कश्मीर से 8 प्लेयर होते थे, 8 प्लेयर जम्मू से सिलेक्ट होते थे, 8 प्लेयर कश्मीर से होते थे, और जब प्लेइंग 11 में होता था 6-5 होते थे, 7-4 होते थे। बट अभी क्या हुआ है, अभी मोस्ट ऑफ द टीम जम्मू डिवीजन से, जम्मू एंड कश्मीर एक टीम है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जहां पे टैलेंट बेटर है वही के प्लेयर रखो, जम्मू एंड कश्मीर को अलग मत करो, जम्मू एंड मत करो जम्मू कश्मीर। बट पॉइंट ये है, क्या आपको लगता है कि कश्मीर में टैलेंट नहीं है, या तो ये लोग मतलब जानबूझ के, अभी जम्मू वाली एडमिनिस्ट्रेशन है तो सिर्फ जम्मू के प्लेयर्स को खिला रहे हैं, क्या असली क्या रीजन है इसके पीछे? मोहसिन, मैं पहली चीज मैं एक बताना चाहता हूँ, जब मैं कप्तान बना था 19 में, मैंने जूनियर से स्टार्ट किया था कि ये जो आपने बात की ना JNK, इसको एंड मैंने काटा था जब मैं 19 का कप्तान बना था। मैंने मीटिंग में, पहली मीटिंग जब मैंने एज ए कप्तान ली थी, मैंने इनको बोला था अगर किसी ने भी JNK बोला ना उसको मैं नहीं खिलाऊंगा। फिर JK से क्या बोलेगी, मगर मैं नहीं खिलाऊंगा उसको, जो JNK बोलेगा। वही रणजी ट्रॉफी में जब भी मैं मतलब एज ए कप्तान या एज ए सीनियर बोलता था, जब भी कोई बोलता था JNK, मैं उसको नहीं खिलाता था। ये मैंने खत्म किया था, और मेरे जो सीनियर्स थे उस टाइम जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था इस चीज को हटाने में, मगर ये फिर से वापस आई है। ये अब जम्मू की साइड गए हैं, अब ये जम्मू के ही खिला रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो टैलेंटेड नहीं है, मगर आप देख लीजिए जो परफॉर्म करता है उसको खिलाओ ना, आप उसको क्यों नहीं खिला रहे? वो जूनियर हो या सीनियर हो, हमें जीतने से मतलब है, हमारी स्टेट ऊपर आनी चाहिए। आप वही 15 प्लेयर खिला रहे हैं, वही जम्मू के 12 खिला रहे हो, वही कश्मीर के 3-4 प्लेयर खिला रहे हो। चेंज तो करो कुछ, हमारी स्टेट नीचे से नीचे जा रही है फिर से वापस। ये भी आप टू ऐड टू दिस, नासिर उनका क्या कसूर है? बिल्कुल, उसको आप कहाँ खिलाओगे? फिर उसको बाहर ही रखेंगे। BCCI is calling him, doing camp there, नेट बॉलर सनराइजर्स का है, उसको आप क्या इतनी जगह नहीं, उसकी जगह नहीं बन रही है तो क्या करना है उसको? फिर मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा यार। इतना परफॉर्म कर रहा है, जितने भी लिमिटेड चांसेस वो है वो कर रहा है, फिर भी नहीं खिला रहे हो। ऑलराउंडर तो मेन चीज है। हमारी टेस्टिंग भी बनती थी, मतलब जो भी रहता था, एक जो मेन ये रहता था ना, ऑलराउंडर का रोल रहता था, उससे हमारा 11 होता था ना, वो हमेशा सेटल्ड रहता था, क्योंकि वो तुम्हारे बॉलिंग का भी काम कर देता था और अभी आपको एक्सटेंडेड बैटिंग मिल जाता था। मुझे समझ नहीं आ रहा, आपके पास इतना अच्छा प्लेयर है, ही इज डूइंग वेल, आप ही बहुत अच्छा है, आप ही उसको अच्छा रिगार्ड कर रहे हो, कैंप भी कॉल कर रहे हैं, BCCI भी अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है, तो बट अभी आप उसको खुद सिलेक्ट नहीं कर रहे हो यार। तो उसका क्या है, वो कहाँ जाएगा? उमर भाई, मैं एक चीज थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। इसमें बहुत सारे गुस्से भी हो जाएंगे, क्योंकि मेरा मुंह सच बोलता है, मेरे मुंह से सच निकलता है, उसमें मैं ना डरता हूँ किसी से, खाली मैं अल्लाह से डरता हूँ। आप ऐसी हालत देख लीजिए, JKC में हम जब प्रैक्टिस करने जाते थे पहले, हम दिल खुश हो जाता था ग्राउंड में जाके। आज देखो, अगर किसी बच्चे को बोलेंगे JKC प्रैक्टिस करने जाएंगे, वहां से एक ही जवाब आता है, माजिदार अपने लड़कों को वहां पे प्रैक्टिस करने जाए, बाकियों को बोलते हैं यहाँ अलाउड नहीं है। बट क्यों ये JKC थोड़ी माजिदार का है? यही तो सवाल है ना, यही सवाल, ये वो उसका जवाब क्या देंगे वो?
उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है, आपके वहां पे जी भाई इतने प्रैक्टिस करेंगे। वो क्या मतलब है? आपके कहने ये का मतलब है किसी का उधर बाप सिर्फ का वो बच्चे जागीर नहीं आते है। हैं जिसको माजिदार बोलेगा खेलने को हाँ, आने को, तो मतलब माजिद वो अब बट अब वो क्यों वहां पे ऐसा क्यों? गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि मतलब बच्चों को प्रैक्टिस भी नहीं करने देते आप जेकेसीए में? आपका नहीं ये क्या? करने देते हैं, नहीं करने देते हैं। मैं जितने भी लड़के मेरे लड़के जाते हैं, उन्होंने ऐसे बोला है कि सर अगर आपका नाम हम कहीं पे लेते हैं, बस उतरी जेकेसी से बाहर, आबिद नबी का स्टूडेंट है, बाहर जाओ, या तो आबिद नबी का नाम मत लो। ऐसी हालत है जेकेसी में। कहाँ जीतेंगे हम? हम्म और कहाँ हमारे जे कश्मीर के लड़के कहाँ से खेलेंगे? ऐसे हम्म खेलेंगे हमारे लड़के? काफी बड़ा कंसर्न है। उमर, और अभी हम जो भी ये सिलेक्शन हुआ है ना, जितने मेरे जो अभी मेरे को पता चल रहा है, हम्म, मतलब एक दिन का ट्रायल हुआ है। यू हैव बीन मतलब सिलेक्टिंग अ गुड साइड, यू हैव बीन सिलेक्टिंग अ स्टेट साइड, हम्म, और एक अच्छे रिनाउंड टूर्नामेंट के लिए। हम्म, एंड क्या ये जस्टिफाइड है? इज इट जस्टिफाइड फॉर दीज प्लेयर्स, फॉर दीज आर हम्म, स्टार्स, कि एक हम्म, दिन में आप टीम बना सकते हो? आप वन डे इम्पॉसिबल। में एक डेज मैच की टीम एक दिन में पिक कर सकते हो? और मेरे उमर हिसाब ये भी हुआ से तो है, मतलब ये उसके भी लिए हुआ तो है कि जो हमारे वनडे, स्टार ये सिलेक्टर है ना, उनकी तो नजर बहुत जबरदस्त है यार। मैं कह रहा हूँ मतलब वनडे उन्होंने की पता ट्रायल के चल लिए, गया कि वनडे मतलब के कैसे उन्होंने पिक कर यार एक 15 वनडे के 15 ट्रायल मेंबर मैच स्क्वाड हुए। आपने एक चीज, एक दिन में। उमर भाई एंड मुस भाई, मैं एक चीज ऐड और एक करना चाहता हूँ। ये हमारे जैसे अभी सुनने में आया है कि कोच बाहर से ला रहे हैं, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। कोच बाहर से ला रहे हैं, मनोज स्टाफ प्रभाकर बाहर लाइन से। में। मेरे को एक ही चीज से इनका इनका एक ही सवाल है मेरा। मेरे को एक चीज बताओ, आपको जेएनके के इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, रह चुके हैं, अच्छा लेवल खेल चुके हैं। मेरे को एक चीज बताओ, बाहर का कोच अच्छा करेगा उनके साथ कि यहाँ का कोच अच्छा करेगा? उस उसको पहले पूरी जेएनके लद्दाख सब जगह जाना पड़ेगा, लड़के देखने पड़ेंगे। उतना टाइम कहाँ मिलेगा उस कोच को? उसको भी वही 15 लड़के वो दिखाएंगे, 20 लड़के दिखाएंगे, वो उन पे काम करेगा। फायदा क्या है? जो हमारा रियल टैलेंट है, जो पीछे रह चुका है, वो कहाँ से देखेगा उनको? वो पता सही चलेगा बात ना है। जब जेएनके का कोई होगा। हम्म, वो खेल तो बिल्कुल। वही 20 रहे हैं ना 10 साल से। जब मेरे को निकाला था, मैंने हम्म, मतलब वर्ष से वर्ष परफॉर्म की थी उस साल जब मेरे को निकाला था 2012 में। मगर मेरी तो भी 9 विकेटें थी 3 मैचों में। हम्म, हम्म, और आज तो लड़के 5-5 विकेट पे खेल रहे हैं। और प्लस सही। मेरे रन हमेशा साथ होते थे। मैं रन को छोड़ो, मैंने वर्ष से वर्ष मैंने खेला था। लास्ट ईयर जो मेरा फाइनल ईयर था, मैंने 9 विकेट लेके तीन तीन मैचों में 9 विकेट ले गया था। हम्म, और ये तो 5-5 सही। 6-6 विकेटों पर मैच खिला रहे हैं। ये क्या जस्टिफाई करेंगे अगर मैं इनके सामने आ जाऊंगा? हम्म, और मेरे को ये 24 उमर साल में मेरे को निकाल दिया इन्होंने। सही बात है। और और जो और, अभी और स्क्वाड एक आया। मुस्लिम भाई, और एक चीज, हम्म, जब मेरे को इन्होंने निकाला था, तब इन्होंने जब इनको कोई जवाब ही नहीं था, तो मेरे को इन्होंने बोला था आपकी फिटनेस प्रॉब्लम है। फिटनेस प्रॉब्लम प्लेयर्स की है, वो दूर कौन करेगा? बिल्कुल। दूर तो एसोसिएशन करेगी ना। अगर उनको हम्म, मैं प्लेयर अच्छा हूं, तो उनको काम हम्म, किस पे करना है? या निकालना है उसको? सही बात है। हम्म, उमर, आबिद, अभी आपने स्क्वाड देखा होगा बूची बाबू के लिए, और उसमें पारस को एज कैप्टन अनाउंस किया गया है। और पारस जस्ट 2 दिन पहले जम्मू आए हैं और अभी टीम 2 दिन पहले जम्मू गई है। तो क्या आपको लगता है कि बाहर का कैप्टन, जो कल तक हमारे प्लेयर्स को जानता भी नहीं था, वो अब डायरेक्ट कैप्टन है? तो क्या लगता है इस पे, ये कैसा मूव है आबिद? ये मैं अभी तो वही बोल रहा हूँ ना, कोच कोच का और कप्तान का सेम ही है ना यही। यार हम्म, क्या करेगा पारस? क्या करेगा? उसको कहाँ पता? चलो वो हमें जानता था, नए लड़कों हम्म, को कहाँ जानता है वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो कैसे हैंडल करेगा, दूसरा लड़का कैसे हैंडल करेगा सिचुएशन। बॉलर्स नए नई बॉल से कौन कर रहा है, हम्म, सेमी न्यू से कौन कर रहा है, डेथ में कौन हम्म, करेगा, कैसे उसको पता हम्म, चल जाएगा? वो कितना हम्म, भी बड़ा प्लेयर हो ना यार, 2 दिन में क्या कर लेगा वो? हम्म, सही। तो आबिद, ये सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है अभी आज जेकेसीए में? लड़कों हाँ, को डायरेक्ट कॉल आता है, बट
क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया सेट करना कितना इंपॉर्टेंट है नहीं सिलेक्शन है के लिए? ना, नहीं है। अगर इन्होंने टैलेंट है तो वो मतलब फजूल में टाइम वेस्ट किया इन्होंने सब बच्चों का। लाते थे ट्रायल पे, वो टाइम वेस्ट था सारा कुछ। अगर तो क्या इन्होंने क्या क्लब क्रिकेट स्टार्ट किया होता ना अप्रैल में, हम्म, इनको 2-3 महीनों में ही 2-3 टूर्नामेंट से निकल जाते आपके लड़के परफॉर्म करके। हम्म, आपको आराम से बट लड़के मिल जाते, उनको कैंप में लाते, 10-15 दिन का कैंप लग जाता, उनके साथ ही मैच खिलाते, इनको टीम बन जाती आराम से। बट आबिद, क्लब सिस्टम में एक इशू आता था जो कई बार मेंशन हुआ कि क्लब में सिर्फ श्रीनगर और जम्मू के लड़के खेलते थे, तो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स के लड़के हैं तो उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। तो उस पर क्या कहेंगे आप? मोहसिन भाई, डिस्ट्रिक्ट्स में टूर्नामेंट होते थे, वो आपको भी पता है, वो जेएंड के सबको पता था। जो लड़का परफॉर्म करता था, एक या दो तो वो तो होते ही होते थे। आज तो सारे ही ऐसे चल रहे हैं, आता सारा ही ऐसा ही चल रहा है सिस्टम। उस वक्त सिस्टम ऐसा चलता था, जो चलो मैं बोलता हूँ, आप बोलते हैं जम्मू के श्रीनगर के ही खेलते थे, वो श्रीनगर की ही नहीं खेलते थे। मेरे साथ बांडीपुरा से भी लड़का ये खेला है, सलीम साहब, है कि नहीं? जब मेरा डेब्यू था, सलीम खेल रहे थे बांडीपुरा से। और कौन था, मतलब 2-3 डिस्ट्रिक्ट से खेलते थे। ये बने ही बनाए ही बातें हैं। डिस्ट्रिक्ट से जो परफॉर्म करता था ना उस टाइम क्लब क्रिकेट में, वो खेलता था। देखो देखो, एक चीज में ये ऐड करूंगा। देखो उस टाइम पे क्या होता था, जब सिलेक्शन होती थी, लड़के मतलब परफॉर्म जो भी टॉप परफॉर्मर्स थे उनको पहले वो खिलाते थे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसमें भी गड़बड़ नहीं होती थी, होती थी। वो उसको 15 में रखते थे, 1-2 लड़के होते थे, मगर 13 जो परफॉर्मर होते थे क्लब क्रिकेट के। अभी जो माजिद जार साहब हैं, जिन्होंने 40 मैच उनके चढ़े हुए हैं, वो 40 के 40 मैच किस पे खेले हैं उन्होंने? किस पे खेले? अगर अगर आप रांची ट्रॉफी का उनका रिकॉर्ड देखेंगे, मैं 10 नंबर 11 नंबर पे रांची ट्रॉफी बैटिंग करता था, मेरी उनके से ज्यादा बैटिंग एवरेज है उस तो हिसाब। कैसे खेला उन्होंने? मतलब जब आप बोल रहे हो कि वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे और उन आपकी नंबर 10-11 पे होके आपकी एवरेज उनसे ज्यादा है, तो इतने सारे मैच कैसे खेले उन्होंने? मैंने बोला ना, अब मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ी आपको खुद समझ आ जाएगा। अब अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो मेरे को फिर से वही बातें सुननी पड़ेंगी, इसलिए मैं ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता। अब जिनको मैंने बोलना था, मैंने उनको बोल दिया है, उनको खुद समझ आ जाएगा। आप ट्रायल मैच जो अभी हुए रिसेंट में, बूची बाबू से पहले, वो तो पहले वनडे के ट्रायल मैच हुए रेड बॉल टूर्नामेंट के लिए, और जो परफॉर्मेंस थे, मतलब उसमें तेजीम ताक, इम्तियाज गनाई, ताहिर भट्ट, नासिर लोन, इरफान अल हक, अंशुल, बहुत सारे प्लेयर्स ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया था। मतलब दे नहीं गॉट रखा विकेट्स, दे स्कोर्ड है रन। ना, नहीं रखा, टॉप परफॉर्मेंस को नहीं रखा है। तो क्या मतलब ऐसे में प्लेयर करेगा क्या? अब ट्रायल मैच में आपने बुलाया प्लेयर को, अब उसने बढ़िया किया, उसने विकेट्स लिए, उसने रन बनाए, और तब भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो क्या करेगा प्लेयर? टीम में आने के लिए प्लेयर को क्या करना है अभी? अगर मेरी सजेशन सुनेंगे ना, अगर दिल से सुनेंगे, उनको बोलो लोकल क्रिकेट खेलो, छोड़ दो रांची ट्रॉफी के। ये मेरी सजेशन। बट आबिद, यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा, बट लोकल खेल के जाएंगे कहाँ? अभी आप लोकल पे भी बात करेंगे हम थोड़ी, लोकल क्रिकेट पे, बट लोकल क्रिकेट जब तक जेकेसीए चेंज नहीं होगी ना, ये होना है। अच्छे लड़के तो, पीछे रहेंगे, जो उनकी मर्जी के लड़के हैं वो उनको खिलाते रहेंगे। तो आप कब होगा जेकेसी चेंज और कैसे होगा? क्या सॉल्यूशन क्या है इस सब का, कि ये सब कैसे खत्म होगा? मैंने कोशिश की थी, मेरी आपको भी पता है कि मेरी हालत क्या कर दी थी इन्होंने, तो अभी आपको लगता है कि लेक ऑफ स्पोर्ट है, सभी फॉर्मर क्रिकेटर्स नहीं आ रहे हैं, या बाकी क्रिकेटर्स जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और ये सब चलता जा रहा है? ये तो चलता ही जा रहा है ना, क्या करे? एडमिनिस्ट्रेशन को बोले, वो कुछ नहीं कर पा रही है, इनको किसी को कुछ बोले, कुछ नहीं कर पाते हैं। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे, उनके पीछे जो सिफारिश है, वो हिल नहीं रहे वहां से, उनकी जो मर्जी हो रही है वो कर रहे हैं, और तो की क्रिकेट चल रही है। तो कहाँ जाएगा फ्यूचर? कहाँ जाएगा? जो नया बच्चा क्रिकेट खेलता है वो मैंने जब ये सब देखेगा तो मैंने परसों भी इंटरव्यू एक दिया था, मैंने उनको बोला था जेएंडके का क्रिकेट खत्म हुआ आज से 7 साल पहले, या 8, मुझे लगता है 8 साल पहले कि 6 साल पहले, ऐसे ही मैंने इंटरव्यू दिया था।
मैंने उसी टाइम बोला था कि कश्मीर का क्रिकेट खत्म हो गया है। अगर आप मेरे पीछे के इंटरव्यूज देखेंगे आज से 4 साल 5 साल पहले, मैंने उनको वहीं पे बोला था कि कश्मीर का क्रिकेट खत्म हो गया। और वो बात आज सबको कंफर्म हो चुकी होगी। कश्मीर के 2 या 3 ही लड़के खेल रहे हैं। उमर, हमने आपको लूज किया था बीच में, तो मैं पूछ रहा था, ट्रायल मैच में प्लेयर आता है, विकेट्स लेता है, रन करता है, जी सॉरी वही हाँ इसको बैटरी का वही थोड़ा सा इशू हो गया था फोन को। हाँ, तो अब तो वही सेम प्लेयर खेल रहे हैं जो ट्रायल मैच में अच्छा कर रहा है, विकेट्स ले रहा है। अभी तेजीम ताक, इम्तियाज गनाई, नासिर लोन, ताहिर भाट, अंशुल, काजी जुनैद, सब ने रन किए, विकेट्स लिए, सिलेक्शन था ना, नहीं है तो वो क्या करेंगे वो प्लेयर? वो वर्ल्ड के लिए ट्रायल मैचेस थे वो, तो इसके लिए तो टी टूर्नामेंट है, तो इसके लिए तो ये तो डेज टूर्नामेंट है, तो इसके लिए उसका तो चलो वो तो अलग ये है। बट मेरा ये है, देखो बट बूची बाबू के लिए वी आर नॉट हियर टू क्रिटिसाइज। हम क्रिटिसिज्म की बात छोड़, हम बोलेंगे हमें करना क्या है। देखो सिलेक्टर्स हमारे सेम ही है, अगले सीजन हो गए। अच्छा, ये भी मैं भूल गया था। वो है भी नथिंग, वो सिलेक्टर्स वही हैं। देखो आप प्लेयर को तो चलो रिजेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, आप प्लेयर को बाहर भी कर रहे हो, प्लेयर को अंदर भी ला रहे हो, पर वो बंदे अकाउंटेबल नहीं है क्या? आप मुझे एक चीज बताओ, उनको देखना पड़ेगा ना अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं। उनसे पूछो भाई, उनसे पूछो। 3-3 4-4 सीजन सिलेक्ट कर रहे हो बच्चों को, चलो जो मर्जी आप वही 20 सिलेक्ट कर रहे हो, नए 20 सिलेक्ट कर रहे हो, बट परफॉर्मेंस कहां है? देखो अगर आप वो हार्ड स्टिक नहीं रखेंगे, आप पूछेंगे नहीं उनसे, तो फिर कैसे होगा? आप तो उनको हर सीजन कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहे हो, चल रहा है वही बंदे रोज चल रहा है। क्या हमारे पास और कोई बंदा नहीं है? क्या हमारे पास प्लेयर्स नहीं है? क्या हमारे पास वो प्रोफेशनल बंदे नहीं है जो पिक कर सिया, जिनके पास आए है वो इनको पिक करे प्लेयर्स को? हमारे तो इतने प्लेयर्स हो यार, लोग क्यों चेंज करो, कुछ नया लाओ, फ्रेश एनर्जी लाओ, और जो उठे कुर्सियों से उठे और लोकल सेटअप देखें। आप बोलते हो हम ग्रास रूट देखेंगे, आप हाईएस्ट लेवल देखेंगे, आप मूव करो ना, जगह पे देखो कौन कर रहा है परफॉर्म। आओ यार, उमर भाई जो कर रहे हैं उनको, यही लोग, इनको जो दे आर गेटिंग हैफ्टी मनी ब्रो। इतने पैसे हैं आजकल क्रिकेट में, सिलेक्टर्स को मिल रहा है इतना पैसा, तो एटलीस्ट उनको कोशिश तो करनी पड़ेगी। हर जगह आप देखेंगे ना, अभी हम बॉम्बे की बात करें, कर्नाटका की बात करें, आप जहां पंजाब की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, जो मर्जी स्टेट आप ले लो, वहां पे सिलेक्टर्स डोमेस्टिक क्रिकेट जो अपना उनका डोमेस्टिक ये है, वो वॉच करते हैं मैचेस। उन जो ए डिवीजन, बी डिवीजन, प्रीमियर डिवीजन, एक सिलेक्टर तो कम से कम बैठा रहता है परफॉर्मेंस देखने के लिए। बिल्कुल, दे डिस्कस इट ऑन टेबल, बट उन्होंने वॉच किया होता है सीजन। यहाँ पे क्या कहाँ है? देखो सिलेक्टर्स तो वही है, चेंज नहीं हुए। तो बिल्कुल 3 साल से वही सिलेक्टर्स है, 4 साल से। तो मुझे बोलो परफॉर्मेंस तो कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस तो नीचे ही जा रही है। तो अब क्या हार्ड स्टिक है? मुझे बताओ कौन पूछेगा उनसे? वी आर रिटेनिंग देम। उमर भाई, जो आपने स्टेट्स की बात की ना, मेरी भी बात होती रहती है। मेरे स्टेट, जितने भी स्टेट्स में मेरे दोस्त सीनियर प्लेयर्स जो हमारे होते थे, सबसे बड़ा अभी मनोज तिवारी भी है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है, या और भी मेरे आंध्रा में है या उड़ीसा में, कहीं पे भी जहाँ पे भी मेरे दोस्त है, बिल्कुल उन्होंने एक ही बात की है कि जितने भी हमारे सीनियर्स अपने स्टेट्स के हैं ना, हर सिलेक्टर, जितने भी सिलेक्टर बने हर साल बनते हैं, वो पहले सीनियर से कंसल्ट करते हैं कि कौन लड़का अच्छा है, कौन बॉलर कर रहा है, कौन बैट्समैन अच्छा कर रहा है, वो कौन विकेट कीपर अच्छा कर रहा है। यही चीज है। और हमारे जितने भी सिलेक्टर बन जाते हैं, वो कुर्सी पे ठप करके बैठ जाते हैं और चट्टी आ जाए, जो हमारी मर्जी है उस लड़के को लाओ और खिलाओ। मैं यहाँ पे प्लेयर्स के लिए ये नहीं बोल रहा, प्लेयर्स देखो अपना एफर्ट दे रहे हैं, प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं, मैं मानता हूँ। किसी का नहीं होता, मतलब किसी का नहीं हुआ, आपने उनको 3-4 सीजन दिए, आपको नया प्लेयर लाना है, तो वो आप देखेंगे कहाँ? देखो आप 2 ट्रायल मैचेस देखो, ये मत बताओ हमें, हमने भी 20 साल देखा है क्रिकेट, हमने भी खेले हैं मैचेस, हमने भी काफी विकेटें ली है, हमने भी बड़े प्लेयरों को आउट किया है, बड़े प्लेयरों को देखा है खेलते हुए, बड़े प्लेयरों को सिलेक्शन करते हुए देखा है। लेकिन आप मुझे बताओ,
जब तक आप हिलोगे नहीं अपनी जगह से, आप देखोगे नहीं लोकल में क्या हो रहा है, हमारे कौन से प्लेयर रन कर रहे हैं, उनको आप चांस नहीं दोगे अंदर ट्रायल में आने की, आप उनको बुलाओगे नहीं, ओपन नेट ओपन ट्रायल नहीं रखोगे जैसे होता था, तो आप नया टैलेंट कहां देखोगे, वो फ्रेश एनर्जी कहां देखोगे। देखो हमने इतने T20 टूर्नामेंट्स यहाँ पे जो स्टेट में लगते हैं ना, ऑल ओवर इंडिया जो लगते हैं, उसमें हमारे 1-2 टूर्नामेंट जो यहाँ पे लगते हैं ना, वो अभी माने जाते हैं। बिल्कुल, नो डाउट दे आर लोकल ऑर्गेनाइजर्स, दे आर डूइंग फैबुलस जॉब। मतलब यहाँ के जो मतलब सारी स्टेटों से प्लेयर आ रहे हैं खेलने, सो कुछ तो है यहाँ पे कि प्लेयर आ रहे हैं, क्रिकेट तो है ना। जब हमारे प्रीमियर प्लेयर देखो, अभिषेक शर्मा एक सनराइजर्स का स्टार प्लेयर है, वो भी आया खेलने। जो हमारे नॉर्थ के टॉप प्लेयर्स हैं सारे आए JKPL खेलने। तो अगर वो खेल रहे हैं तो कहीं तो अच्छा हो रहा है, लेकिन वो चीज हम और हमारे प्लेयर वहां पे हिट रहे, बाहर के प्लेयर से हमारे प्लेयरों ने ज्यादा परफॉर्म किया, ये आबिद को पता है। जो हमारे प्लेयर्स थे उन्होंने जब देखा ना ये टैलेंट, बोला यार तुम सईद मुश्ताक अली क्यों नहीं देखते हो, सईद मुश्ताक अली में अच्छा क्यों नहीं करते नॉकआउट। देखो हमारे प्लेयर तभी IPL खेलेंगे, ये बात याद रखना, हमारे प्लेयर तभी IPL खेलेंगे, मैचेस खेलेंगे जब हमारी स्टेट परफॉर्म करेगी। तुम जो मर्जी कर लो इंडिविजुअली, लेकिन हमारे प्लेयर आगे नहीं खेल पाएंगे। देखो हमारा आबिद मुश्ताक है ना, उसने खेला होता, अगर वो किसी और स्टेट का होता ना, मैं लिख के लेता हूं उसने कब का डेब्यू किया होता, 3 साल पहले IPL में। लेकिन प्रॉब्लम ये है क्योंकि हमारी टीम अच्छा नहीं कर रही, तो इसलिए ये हो रहा है कि हमारे बच्चे, हमारे 7 से 8 से 10 बच्चे खेलेंगे, लेकिन कब, जब हमारी टीम नॉकआउट्स क्वालिफाई करेगी, आगे पहुंचेगी। हमें देखो उसके लिए जीतना पड़ेगा, और ये बिलीफ रखना है कि हम जीतेंगे। जब तक सिलेक्टर्स में बिलीफ नहीं होगा ना जीतेंगे, तब तक प्लेयर्स नहीं जीतेंगे, ये बात याद रखना। जब तक हम एम हाई नहीं करेंगे ना, तब तक ये नहीं होगा। इसके लिए अकाउंटेबल रहना पड़ेगा, इनको पूछना पड़ेगा, भाई सिलेक्टर्स यू आर गेटिंग एन FT मनी, उसके लिए उठो कुर्सियों से काम करो। तुम बोलो परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रहा, जो प्लेयर्स तुमने सिलेक्ट किए इन्होंने करके क्यों नहीं दिया। जब इनको भी क्रॉस चेक रहेगा ना, तभी परफॉर्मेंस आएगा, तभी ये भी जोर लगाएंगे ना, ये भी सोचेंगे क्या हो रहा है, हम किन पे बैंक कर रहे, नजर होती है ना कोई। आप भी देखो प्लेयर्स, हम भी देख रहे हैं भाई, हमने भी काफी टीमें देखी हैं। देखो हमारे पास अभी मैं बताऊंगा कॉर्पोरेट की टीम है AG ऑफिस, AG ऑफिस बिल्कुल, हम खेलते हैं 8 से 9 प्लेयर जम्मू के, 8 से 9 प्लेयर कश्मीर के, जिन्होंने स्टेट 20 साल खेली है, 15 साल। और जो हमारे साथ में खेलते हैं ना कॉर्पोरेट में, वो भी सारे रिनाउंड प्लेयर्स हैं स्पोर्ट्स पे, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स पर्सन जो भी सिलेक्ट होते हैं ना स्टेट में 2 हर साल। बिल्कुल। तो उसमें जब हम खेलते हैं ना, तो हम उनको हराते हैं, क्योंकि वहां पे ये J&K वाला जो आबिद ने बोला ना, वो मसला नहीं है। वहां पे JK एक यूनिट है, हम साथ में खेलते हैं, साथ में लड़ते हैं। उधर जगह की ये नहीं है कि मेरे को जगह पकड़नी है टीम में, नहीं। वहां पे ये है कि हमें टीम के लिए खेलना है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। हम क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं, पहले टीम के लिए, टीम का परफॉर्मेंस आता है, उसके बाद अपना, ठीक है। तो सही बात, ऑब्वियसली पहले टीम की बात आएगी। तो ये चीज किनको बतानी है, हमारी मैनेजमेंट को बतानी है, उनका भी रोल है। देखो मैनेजमेंट भी बहुत चीजें देख रहे हैं ना, तो मैनेजमेंट का भी फर्ज बनता है कि करे, प्लेयरों को यूनाइट कराए, उनको खिलाए। देखो अभी टीम निकाली है आपने, तो आपका भी रोल बनता है, फर्ज बनता है, उनसे बात करो। अब लेकिन पंगा ये है, जब आप नासिर लोन जैसे प्लेयर को बाहर करोगे, हिनान को बाहर करोगे, जिन पे आपने पिछले ये दिखाया है, उन पे ट्रस्ट दिखाया है पिछले 3-4 साल से, और ऐसे अच्छा करके उनको बाहर कर रहे हो, और एक वेटरन को लेके आ रहे हो वहां से, और इसमें एक और भी लूप होल डेवलप हो रहा है। तो अब तो फिर हो गया ना, वो आपस में सब वो हो जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी स्टार प्लेयर्स तो इतने हैं, उनमें से किसी को लीड करा लेते, इंस्पिरेशनल अगर आपको चाहिए था, क्योंकि समद इज डूइंग फैबुलसली वेल एट देयर, अभी तो कर रहा है, वो 3 साल से खेल रहा है, उसको कर दो व्हाइट बॉल कैप्टन बना दो उसको, क्योंकि उसने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ काम किया है। उमरान ने इंडिया खेला, उमरान को बना लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। आप इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हो ना, इंडिया प्लेयर आ रहा है आपके पास, तो उसने देखा हुआ है सेटअप, वो 2 साल से कॉन्ट्रैक्ट है प्लेयर इसमें BCCI के, तो ऑब्वियसली वो भी तो देख रहे हैं वहां पे, तभी वो भी जोर लगाएंगे अपनी स्टेट के लिए। अंदर से होता है, देखो हम तभी बात कर रहे हैं जब हमें दुख लगता है, हम बोलते हैं क्यों नहीं कर पा रहे यार। देखो पौंडीचेरी जैसी टीम भी खेल रही है, मतलब ऐसे में आ गई है, मतलब जिनको जो 3-4 साल पहले थी नहीं, 3-4 साल में जितनी टीमें आई है ना, वो भी अच्छा कर रहे हैं, हमारे से अच्छा कर रहे हैं।
रही है, वो परफॉर्म कर रही है। वो प्रोफेशनल्स अगर खिलाएंगे तो उनका बनता है, हम प्रोफेशनल खिलाएंगे, अभी उनकी नया, हम उनका भी प्रोफेशनल क्यों खिलाएंगे? नया उनका नया सेटअप है। देखो हिमाचल ने जब शुरू किया था ना, तब हम आबिद और मैं जूनियर खेल रहे थे, तो हिमाचल ने पहले 4 प्लेयर प्रोफेशनल बुला लिए, 4 प्लेयर पंजाब से, हर फॉर्मेट में, हर एज ग्रुप में। तो उसमें क्या रहा, उनको बिलीफ आया कि भाई हमारे पास पंजाबी खेल रहे हैं, स्टार प्लेयर्स खेल रहे हैं, उन्होंने ले लिया। उससे उनके अब अंदर आ गया कि नहीं हम भी कर सकते हैं अब। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया ना जीतना, तो उन्होंने वो प्रोफेशनल्स कम कर दिए, उन्होंने अपने प्लेयर इंडक्ट कर दिए, तो उसमें अपने प्लेयर अब जीतने लगे। उन्होंने भी वो भी तो अच्छा करते हैं, उनके प्लेयर्स इंडिया भी खेल रहे हैं, कैंप भी कर रहे हैं, इंडिया ए भी खेल रहे हैं, सारी फॉर्मेट पे आ रहे हैं, आईपीएल के लिए भी ले रहे हैं उनको। तो ये चीज देखनी पड़ेगी हमें कि यहाँ पे अकाउंटेबल खाली प्लेयर्स नहीं है, हमारे सिलेक्टर ज्यादा ये रहते हैं, वो आए सीन में, वो करें काम। तुम बोल रहे हो देखो यार प्लेयर्स तो चलो एफर्ट दे रहे हैं, वो तो हमें भी नजर आ रहा है, बस सिलेक्टर्स का एफर्ट नहीं आ रहा है, और उनका वो एम नजर नहीं आ रहा कहीं पे। आप समझ रहे हो मेरी बात कि यार नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्लियर कट पॉलिसी है, अकाउंटेबल नहीं हेल्ड किया जा रहा है। उमर भाई वही चल रहा है ना, साल में जी 15 निकाल दिए, साल गया, बात खत्म, फिर से अगले साल वही सेम एक सिस्टम। मैच हम जीतते हैं उस पे हम खुश होते हैं, वो खुशी हम मनाते हैं यार। हम ये मैच तो हम पहले भी जीतते थे, और एक ही क्यों जीतते थे, हम तो 2-3 जीतते थे। हाँ उन दिनों 2 ही टीमें क्वालिफाई करती थी पूल में, उसमें पंजाब और दिल्ली रहता था, पंजाब और दिल्ली के इंडिया प्लेयर्स रहते थे मैक्सिमम, तो वो क्वालिफाई कर जाते थे। लेकिन हिमाचल और हरियाणा हम भी हराते थे, आबिद के टाइम में भी पता है, हमारे टाइम में भी पता है कि हम हराते थे उनको, और एटलीस्ट हमेशा फाइट देते थे आगे। लेकिन अब तो हम अच्छी स्टेट की टीम जब भी कुछ लगती है हम वन साइडेड हार जाते हैं, हम पहले ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल, इसमें कुछ तो लग रहा है कि बीच में गैप है, तो प्लेयरों को सर इंफॉर्मेशन, मतलब ये तो चलना चाहिए ना, सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। आबिद और उमर, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, किसी को अभी इस न्यूज का नहीं पता, और मैं मेरे सोर्स के थ्रू ये सुन रहा हूँ कि एक तो पारस डोगरा को लाया है, और अभी 2 और गेस्ट प्लेयर शायद लेना चाह रही है जेकेसी, एक ऑफ स्पिनर और एक विकेट कीपर बैटर। अगर ये होगा तो फिर तो ठीक हो गया ना उमर भाई। ये मोहसिन मैंने पहले ही बोला ना, मैंने आज से 7-8 साल पहले बोला है, ये 7-8 साल पहले कश्मीर का क्रिकेट खत्म हो गया, अब जम्मू का भी होगा। चलो फिर तो ठीक है ना, फिर तो बुला लो सारे 16 के 16 बुला लो, अपने बच्चों को बोलो बस छोड़ दो, फिर हम तो क्लैप ही करने जाएंगे। बैठो घर में और कुछ काम वाम करो। फिर तो नहीं बनता ना, जब ऐसे प्लेयर ही आएंगे, प्रोफेशनल्स ही आएंगे, तो उस जीतने का। अच्छा चलो आप बताओ मोहसिन भाई, हम 16 प्रोफेशनल्स बुला रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उस जीतने का क्या फायदा बन रहा है, मुझे बताओ। तो जम्मू कश्मीर तो आ नहीं रहा, ये तो आईपीएल की टीम लग रही है। इससे तो हमारे जो यहाँ पे लोकल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं ना अभी, रेड एफएम वाला या जेकेपीएल, उसमें हम 3 या 4 बाहर के प्लेयर बुलाते हैं, लेकिन बाकी 7 तो अपने ही खेल रहे हैं, एटलीस्ट वो तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये तो उससे हद हो गई, अब आप वहीं से बुला लेंगे स्टेट के प्लेयर, तो फिर तो हो गया। जो बेचारे साल भर वेट कर रहे हैं 5 मैचेस का, 10 मैचेस का, उनका भी हो गया, फिर सीजन कल्याण हो गया उनका। अब देखो फिर क्या बोल सकते हैं, वो तो होना ही है। उमर, आबिद, हमने बहुत बड़ा लिस्ट लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जे&के में, जेकेसी में क्या प्रॉब्लम है, बट अब दोनों से मैं एक एक करके पूछूंगा, आपको क्या लगता है इस सब का सॉल्यूशन क्या है? उमर आपसे स्टार्ट करूंगा, फिर आबिद पे आऊंगा। देखो मैं बोलता हूँ, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द सिलेक्टर्स, ये मेरा ये है, मैं प्लेयर्स के साथ नहीं हूँ। देखो प्लेयर्स का पूल हमारे पास है, देखो आप मेरे साथ बात। एक सेकंड उमर, आपने बोला सिलेक्टर्स को चेंज करो, बट सीएसी अपॉइंट करता है सिलेक्टर्स को, क्या ये सीएसी करता है कि सिर्फ सीएसी बैठा है? सीएसी भी तो चेंज नहीं हो रहा ना, सीएसी भी तो वही है। देखो मेरे को कोई फायदा, कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं अपनी स्टेट के लिए दुखी हूँ, मैं अपने प्लेयर्स के लिए ये हूँ। देखो अगर ये चीज रही ना, तो यहाँ का क्रिकेट खत्म हो जाएगा। हमारे अभी 3 है, तो फिर कोई नहीं होगा। उमर भाई आप बोल रहे हो खत्म हो गया है। देखो अभी अब आप बोल रहे क्या करना है, मैं उसके लिए बोलूंगा। हाँ, सॉल्यूशन क्या है? सिलेक्टर्स शुड बी अकाउंटेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव बीन सिलेक्टिंग टीम्स फ्रॉम पास्ट 4 इयर्स। मेरे हिसाब से अब उनका बहुत हो गया, उनको शुक्रिया अदा कराओ, नई रिजीम ले आओ। दे विल गेट अ न्यू मतलब सिलेक्शन कमिटी। उसके बाद जो भी मैनेजमेंट कर रही थी ना काम, उनको भी चेंज करो, शफल देम।
अभी काम करो, देखो देखिए गेट अ फ्रेश एनर्जी यार। ये होता है ना जब नहीं चलता है ना, डिबैकल होता है ना, जब 3-4 साल नहीं हो रहा है कुछ, तो यू शुड स्टार्ट अ फ्रेश, गेट सम न्यू एनर्जी। नए लड़कों को काम दो यार। देखो इतनी चीजें हो रही हैं, काफी पैसा कमा लिया अब उन लोगों ने, अब नयों को भी चांस दो जो काम करना चाहते हैं, जो हंग्री हो अच्छा करने के लिए, ठीक है, उनको बुला लो। सिलेक्टर्स रखो अकाउंटेबल, जब आप चेंज करेंगे ना यहाँ पे, तभी यहाँ का सिलेक्टर एफर्ट देगा। अब आदत ही हो गई है, हम मीडियोकर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सिलेक्टर्स चेंज नहीं हो रहे, उनको भी कोई टेंशन नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे, तो फिर तो हो गया काम, फिर तो कुछ नहीं होगा। देखो अगर आप चाहते हो तो मेरे हिसाब से देखो सबसे इंपॉर्टेंटली क्या है, जो प्लेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन या प्लेयर्स और सिलेक्टर्स में जो चीज है ना, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, शुड बी क्लियर। रोल्स देने पड़ेंगे, यस रोल्स देने पड़ेंगे। इफ यू आर सिलेक्टिंग अ टेस्ट साइड, आपको क्या चाहिए टेस्ट साइड से इस सीजन, वो पहले शॉट सेट होना चाहिए। हमारे गोल्स क्या है टेस्ट में, वनडेज में, व्हाइट बॉल में, और T20s में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, और सबसे जो हम कर सकते हैं, सबसे पहले हम व्हाइट बॉल जीत सकते हैं, क्योंकि छोटा फॉर्मेट इजी रहता है, और हमारे छोटे फॉर्मेट में, लोकल में बोल रहा हूं मैं, बहुत ही जबरदस्त टैलेंट है। मैं लिख के लेता हूं, इफ वी सिलेक्ट अ जेन्युइन साइड, हम कर सकते हैं। देखो बाहर से जो भी प्लेयर्स आए, जो मेरी टीम से आए, मेरे साथ मेरे टीम से 3 रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स हरियाणा के आए, बॉम्बे का आया, इस साल इंशाल्लाह 3-4 और बुला रहे हैं हम। उन लोगों ने हर किसी ने तारीफ की हमारे टैलेंट की। JKPL जो भी खेला, जो भी अच्छे अभी खेल रहे हैं, BPL खेल रहे हैं, जो भी कुछ, वो बोल रहे हैं नहीं हमारे प्लेयर तगड़े हैं, हमारे प्लेयर मारने वाले हैं, हमारे प्लेयर स्किलफुल है। देखो जब प्लेयर्स को लगेगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेयर को लगना चाहिए कि प्लेयर का नाम तभी याद रहेगा जब वो अच्छा प्लेयर होगा, नहीं तो याद कितने भी बार आप बोलो नहीं याद रहता। तो उस चीज के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास टैलेंट है, उस टैलेंट को ग्रूम करो, उनको ये दे दो, हम बोलते हैं ना 3-4 साल खिला लिया तो बहुत हो गया ना, नो डाउट। उनके साथ प्लेयर्स के साथ ये है, फेयर चांस देना चाहिए, अच्छी तरह खिलाना चाहिए, बट जो कर रहा है उसको कंटिन्यू कराओ, जो नहीं कर रहा उसके लिए चेंज जरूरी है। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है यार, नहीं हो रहा तो दूसरे को तो लाओ, इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं लोकल लॉट में यार, उनको बुला लो, उनको बोलो चलो ठीक है हमने तुम्हें लोकल से पिक किया, ऐसा कुछ नहीं है, बैंड है, ठीक है हो गया, नेक्स्ट सीजन के लिए तो पिक कर सकते हो ना अभी से, तो उनको बोलो यार तुम तो एक सीजन हमारे पे ट्रस्ट रखो, 20-25 लड़के पूल उठाओ लोकल लॉट से, उसमें से आपको अगर 3-4 भी प्लेयर मिले ना तो आपका काम बन गया, वही लोग आपको जिताएंगे। एक बार इसमें एक ऐड करूंगा, जो आपने अभी बोला ना, जो चेंज करना है, चेंज करनी है, मगर चेंज ये नहीं करनी है कि जो इन्होंने लास्ट 2 साल से कर रहे हैं, रणजी ट्रॉफी से प्लेयर निकाल के 23 में डाल दिया, हाँ जी वहां नहीं कर रहा तो वहां करके वापस डाल देंगे, वो नहीं करनी। चेंज करो तो चेंज करो उनको, मैं बोल रहा हूँ लोकल से जाए ना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी तो मेहनत करने दो ना। राइट उनको दिमाग में पता ही हम तो टीम में है ही है, या तो 23 खिला लेंगे या रणजी ट्रॉफी खिला लेंगे, हमें वापस आना ही आना है, तो दिमाग तो डालो, परफॉर्म करो तभी तो आप वापस आओगे। देखो वो तो पहले हम बोलते थे लॉट नहीं खेल रहा है ना, 23 रणजी ट्रॉफी जूनियर, वो तो सारे वही लॉट खेल रहा है ना। जब हम खेलते थे ना, उन दिनों बोला जाता था कि तलवार रहती थी गर्दन पे हर टाइम हमारे पे, करोगे नहीं एक मैच में। आजकल तो चलो ये बहुत लकी है यार ये प्लेयर्स आज के कि इनको सीजन मिल रहे हैं, हमारे को तो मैच टू मैच ये सुनना पड़ता था कि इसको निकाला है तुम्हारी जगह, ये करना पड़ेगा तभी तुम खेलोगे, नहीं तो बाहर, नहीं तो घर। आजकल फेयर चांस मिल रहा है, अच्छा सीजन बैक कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ आपने बैक किया प्लेयर को, उसको खिला लिया अच्छे से, ठीक है, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ ना, इनकी किस्मत इतनी अच्छी है। देखो मैं हर साल मेरी 25 से ऊपर विकेटें होती थी, मतलब 25 से हर साल मेरी विकेटें होती थी, और जब ट्रायल्स होते थे मेरे दिमाग में एक ही बात रहती थी, शायद रखेंगे कि नहीं रखेंगे, शायद रखेंगे कि नहीं रखेंगे। विकेटें लेके परफॉर्म करके, जोन खेल के, मतलब अच्छी परफॉर्म हर जगह करके, NCA करके, जितने भी कैंप्स किए हैं, मगर एंड ऑफ द डे मेरे को दिमाग में ये रहता था रखेंगे कि नहीं रखेंगे। आज के लड़के उनको पता ही है, चलो यार मैं टीम में हूँ, ये कॉन्सेप्ट उसके दिमाग से तो निकालो, तभी तो उनकी परफॉर्म निकलेगी। है ही नहीं उनके दिमाग में।
आप दोनों से एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद हम क्लोज करेंगे क्योंकि काफी टाइम हुआ है। तो लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से ये है, यहाँ पे बोलते हैं लोकल क्रिकेट कश्मीर का भी काफी पीक पे है, काफी सारे प्लेयर खेल रहे हैं, बाहर से प्लेयर आ रहे हैं, हर कहीं पे सिर्फ लोकल प्लेयर्स का जिक्र है। तो जो ये लोकल प्लेयर्स है जो हर जगह 50, 100, 20 बॉल पे 30 बॉल पे रन करते हैं, क्या ये सच में इतने कैपेबल हैं कि ये इनमें इतना टैलेंट है, इनमें इतने स्किल्स हैं, या फिर इधर का जो कंपटीशन होता है वो उतना नहीं है? तो अगर ये प्लेयर सच में टैलेंटेड हैं, क्या ये आगे इसलिए नहीं खेल पा रहे क्योंकि जे किसी चांस नहीं दे रहा है, कि ये उतने कैपेबल नहीं है? नहीं, देखो हम काफी चीजें मिक्स कर रहे हैं। देखो मैं बोलूंगा लोकल क्रिकेट है, बहुत है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, बिल्कुल क्वालिटी वाइज वी आर गॉन डाउन, वेरी डाउन। जो स्टार्ट जब हमने स्टार्ट किया 2000-2002 से, उन दिनों लेवल ऑफ क्रिकेट वाज वेरी हाई। क्वांटिटेटिव मतलब हम क्वालिटी देखते थे, क्वांटिटी इतना क्वांटिटी नहीं होता। अभी क्वांटिटी वाइज वी आर मतलब बहुत है, दिन में 2 मैच भी 3 मैच भी खेल लेता है प्लेयर। वो छोड़ो आप, उसको हम टच नहीं करेंगे। लेकिन टैलेंट फॉर श्योर है, टैलेंट फॉर श्योर है। जैसे हम मतलब एक नया बॉल या वाइट बॉल जैसे हम मारते हैं ना, बहुत कम देखा है मैंने। हमने तो अब काफी स्टेट्स में खेला है, ऐसे नहीं मार पाते हैं लोग। बट अब यही टैलेंट जो है ना, इसके साथ काम करना पड़ेगा आपको। ये टैलेंट उठा के डायरेक्ट आप सईद मुश्ताक अली खिला लो, वहां पे ये चलेंगे नहीं पहले शुरू में। तो इसके लिए हुआ ऐसा साल, 1.5 साल, 2 साल यू हैव टू वर्क विद देम। आपको इनको बताना पड़ेगा, इनका माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। इनका जो फेयरलेस अप्रोच रेडी है इन उमर, आपको रोकूंगा इस बात पे क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्या ये प्लेयर रेडी है मेहनत करने के लिए? मैं प्लेयर्स को देखता वही तो मैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मैं वही बोल, क्या वो फिटनेस पे काम कर रहे हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ, सही स्किल्स पे काम, मैं वही बात कर हाँ मैं बोल रहा हूँ वी आर मिक्सिंग थिंग्स। मैं वही बोल रहा हूँ ना, हमें इनके साथ काम करना पड़ेगा। देखो हम क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, तो उसमें जो आपका स्किल लेवल है ना, वो नीचे जा रहा है, वो कम हो रहा है, क्योंकि स्किल पे काम नहीं हो रहा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक स्किल पे काम नहीं करोगे। फिटनेस वाइज दिस गेम इज नाउ फिटनेस ओरिएंटेड। अब नहीं चलता है कि आप आराम से खेलोगे थके थके, आपको सिंगल्स भागनी पड़ेगी, आपको फील्ड में रन बचाने पड़ेंगे, कैचेस लेने पड़ेंगे। तो फिटनेस पे भी काम करना है। अब जब आप दिन में 3 मैच खेलोगे, मुझे बताओ आप में जान होगी जिम जाने की, आप में जान होगी सुबह 6 बजे कैंप करने की, तो उसके लिए वो शेड्यूल करना पड़ेगा। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एक लोकल प्लेयर की माइंडसेट बता रहा हूं मैं आपको। एक लोकल प्लेयर सोचता है कि मुझे तो खिलाएंगे नहीं, तो मैं क्यों करूं ये सब? मेरा तो बैट पे अच्छा लग रहा है, मेरे को 1500, 2000, 2500, 3000 मिल रहा है मैच का, तो मैं उसी में खुश हूं, मेरे को नहीं खेलना उधर। अभी सॉरी अफेयर क्या है, हमारे प्लेयर शॉर्ट लिस्ट में नहीं जा रहे, हमारा ओपन ट्रायल नहीं हो रहा। जो लड़के हैं वही खेल रहे हैं, ट्रायल मैचेस भी वही खेल रहे हैं, पिक भी वही हो रहे हैं, ड्रॉप भी वही हो रहे हैं। जो लड़के लोकल हैं वो लोकल ही खेल रहे हैं। उन्होंने बोला है भाई आंखें बंद कर ली हैं, जो कुछ लड़ रहे थे उन्होंने भी छोड़ दिया है। तो उसमें मैंने इस साल 1-2 प्लेयर जो मेरी टीम से आए थे खेलने या मेरे ऑपोजिट आए थे खेलने, उनको मैंने बोला भी ये, मैंने बोला 1-2 साल अपने आप को जेकेसीए में दे दो, जेकेसीए के लिए दे दो। उसके लिए अगर आपको अपना ये रोकना भी पड़े ना, लोकल क्रिकेट छोड़ दो, क्योंकि तुम में वो सब है जो एक स्टेट प्लेयर को होना चाहिए, बस थोड़ी सी मेहनत और चाहिए। ये मैं सिंसियरली उनको बताया हूं, इसलिए क्योंकि मेरे को पता है वो कर सकते हैं। लेकिन उसमें अब ओनस किस पे है? सिलेक्टर्स पे, जो उनको पिक कर रहे, जो उनको बुलाए। देखो हमें लड़ाई नहीं रखनी है कि लोकल इसने खेला है, लोकल खेल रहा है। हमें चाहिए, हमें एसेट्स चाहिए, और ये लोग एसेट्स हैं। इनको थोड़ा सा फाइन ट्यून करना पड़ेगा, इनको ग्रूम करना पड़ेगा। उमर भाई एक चीज है इसमें, लड़कों का माइंडसेट ही चेंज हो गया है ना। ये इनका दिमाग में एक ही चीज है, जब हमें गेट से अंदर नहीं जाने दे रहे हैं तो हम कहाँ से ट्रायल्स पे जाएंगे, हम कहाँ मेहनत करेंगे? मैंने ये सीधे माइंडसेट तभी तो बोल रहा हूँ, ये लोकल में सारे खुश है। मैं वही बात बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जब तक हम अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे ना, प्लेयर के लिए ये लोकल खेल रहा था तो ये क्या दुश्मन है हमारा? यार उसको जाएगा कहाँ? वो उसको पैशन है अंदर यार, उसको तो खेलना है ना यार। तो मैं बोल रहा हूँ आप तो खेलना है, ओपन रहो, इनको भी बुला लो। मैं एक की मिसाल देता हूँ, मेरे अपने कजन का मैं बोलता हूँ।
उसको हाँ मैंने तैयार किया था, एकेडमी में तैयार किया था। फास्ट बॉलर बहुत अच्छा बन गया था, बहुत ही तगड़ी बॉलिंग कर रहा था। अंडर 14 मैच भी खेला, अंडर 14 के बाद जेकेसी ने बाहर कर दिया। उसका इतना माइंडसेट चेंज हो गया क्रिकेट की तरफ। वो क्या खेलता है अभी, मगर जो मैंने उसके दिमाग हाँ, में डाला पैशन तो था, क्रिकेट के लिए वो था। वो सारा ही बाहर ही निकल गया जेके की वजह से, और वो बॉडी बिल्डिंग में घुस गया। अब वो मैच खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, मगर वो वाला क्रिकेट नहीं खेल रहा। तो बाकियों की तो तो हमारा तो मतलब जीन्स में है हमारी क्रिकेट है, मगर ये हमारा हाल है, तो बाकियों का क्या हाल होगा। तो आप दोनों का ये कहना है कि अगर जेकेसी ऐसे ही चलता गया तो यंगर जनरेशन खेलना ही नहीं चाहेगी क्वालिटी क्रिकेट। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो 7 हो रहा है 8 ना। साल पहले ही बोला आप है। जैसे स्टेप्स उठा रहे हैं वही तो हो रहा है। आप तो उनको ढकेल रहे हैं लोकल खेलने में, ये क्वालिटी वाइज तो है नहीं, वो ड्रॉप ही हो रहे हैं। तो उस चक्कर में वो यही वाले में खेल रहे हैं, वो तो उधर आ भी नहीं रहे। ऊपर से अब ये भी आप सॉरी अफेयर है कि अंदर जा भी नहीं रहे प्लेयर, तो वो मैचेस भी नहीं जाप चल ले रहे जो रहे हम खेलते थे, जो हम देखते थे। आबिद और मैं स्कूल के बाद भी आते थे ग्राउंड में, वहां पे क्लब मैच चल रहा में। होता था 50 ओवर का, तो हम बेंच पे मोहसिन बैठ भाई, के देखते थे। लेकिन अब वो मोहसिन बच्चा भाई, कहाँ देखेगा, यही तो पंगा है। हम मोहसिन सब भाई, कुछ छोड़ के उधर ही होते थे ना। हमारा सेकंड हम होम तो स्टेडियम था, शेर कश्मीर स्टेडियम। हम प्रैक्टिस भी उधर ही हम करते थे, मैच भी देखते थे, सोते भी मीटिंग वहीं भी पे वही थे, होती थी। खाते भी वहीं आजकल पे तो थे। प्लेयर जाता ही नहीं है उधर, तो उसको क्या पता है मोहसिन मेरी भाई, अंदर नहीं आने दे। मैंने मैंने आज से 3 या 4 साल पहले जेके पुलिस का थैंक यू किया था। उन्होंने हमें घुसने दिया और टूर्नामेंट खेलने लगे हम। और लास्ट ईयर सीआरपीएफ का हमने थैंक यू किया कि जेके में हमें ए ग्राउंड में खेलने के लिए उन्होंने तो किया। जेके से तो खेलने नहीं देती। थैंक्स टू आपके कहने का मतलब है सीआरपीएफ जेके पुलिस पुलिस। पुलिस और आर्मी का जब था उधर तो वो आपको खेलने दे रहे थे, और अभी जो जेकेसी है वो अंदर भी नहीं जाने दे रहे। वो हम तो वही घुसने बात नहीं कर रहे हैं देते। ना, वो ए डिवीजन क्रिकेट, जिस क्लब क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं जहां से प्लेयर निकलते वो थे, खत्म वो भी तो हो नहीं गया रहा है। ना। वो वही तो ये मसला है ना, वो ठीक करना पड़ेगा ना। आपको प्लेयर तभी तो मिलेंगे। देखो ये लोकल प्लेयर जब उधर आते ना, उधर जब ये आते उनको पता चल जाता है कि क्या मेहनत करनी है, हम क्या चीज लैक कर रहे हैं। क्या जब लैग एक सीजन कर रहे हैं, प्लेयर क्या को वो लैग कर देखेंगे रहे हैं, ना हमें खेलते क्या हुए, करना है। जब एक फाजिल रशीद को आप खेलते हुए देखोगे, जब आप उमर नजीर को बॉल करते हुए देखोगे, आकिब नबी को बॉल करते हुए, नासिर को, जो भी हमारे करंट लॉट के प्लेयर हैं, तो ऑब्वियसली एक यंगस्टर क्या करेगा, उनको फॉलो करने की कोशिश करेगा ना। जब तो अब देख आप के उनको इंस्पायर होगा। इंटरेक्ट ही नहीं करोगे, आप उससे मिलोगे नहीं, आप उसको देखोगे नहीं, तो आप कैसे इंस्पायर होगे, तो आप कैसे मेहनत करने लगोगे। देखो प्लेयर के साथ हम जब जाते थे ग्राउंड में, जहां मर्जी खेलते थे, तो हम अच्छे प्लेयर के पास जाते हैं ना, फोटो खिंचाने जाते हैं। और जो एक सीजन प्लेयर, ये प्लेयर होता है ना यंगस्टर, जिसको शौक है प्लेयर बनने का, ये उससे बात करना चाहता है। इसमें जो गलतियां हैं ना, वो खामियां डिस्कस करना, मेरे को ये प्रेशर्स आ रहे हैं, मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका तो न्यूक्लियस मिल रहा है उसको। जब सीजन प्लेयर के साथ तुम बात करोगे तो करेक्ट। उसकी तो डाउट्स क्लियर होते हैं। तो यही चीज तो है, यही चीज तो उमर होती थी भाई, उस क्रिकेट से। अब जब वो ही नहीं उमर होगी भाई, तो आप किसको बुलाओगे, तो कैसे करेंगे, करेगा, मुझे समझ नहीं आ और एक बात सुनाता हूँ ना, और एक बात सुनाता हूँ। कोई हाँ। फास्ट बॉलर जो करंट में खेल रहे हैं ना, अगर उनको मेरे साथ कोई देखता भी है ना, अच्छा आबिद के साथ है आज, ऐसी बातें होती है। बट क्यों ऐसा क्यों मेरे है पास आप दोनों? मैं कोई क्यों अगर इंसल्ट मेरे कर पास रहा हूँ सीखने प्लेयर के, को? मैं ये मैं पर्सन मैं ज्यादा से ज्यादा क्या बोलूंगा एक बॉलर को, अगर उसकी कोई गलती है उसको निकालूंगा, ठीक है, उसको बैन लग जाएगी अगर मेरे साथ बात करेगा। हंसी आती है मुझे अब। बट चलो ये मोहसिन बस भाई आपको। बहुत हो गया, अब मुझे लगता है काफी चीजें डिस्कस हो गई। होप कि जेकेसी ये इंटरव्यू सुने और एटलीस्ट हाँ। सिलेक्टर चेंज करे और नए फ्रेश एनर्जी लेके और आए और हाँ। अकाउंटेबल रखे प्लस इन सिलेक्टर्स को। बाकी यही है, देखो आप दोनों। प्लस यही है, हाँ देखो हाँ। हम अभी भी खेल रहे हैं, जो लोकल लेवल खेल रहे हैं, और वहां पे भी जितने बच्चे आ रहे हैं उनके साथ यही डिस्कशन होता है कि मेहनत करना मत छोड़ो, कोई बात नहीं, डोंट लूज हार्ट। इंसान के दिन आते हैं, थोड़ा सा और वेट, थोड़ा सा और मेहनत, यही चीज है हमारी, हम यही बोल सकते हैं। तो बाकी देखो काम तो ग्राउंड लेवल पे ही करना है ना, हम वही लोग हैं, हम प्लेयर ग्राउंड में ही बने हैं। आप जिस मर्जी से पूछ लो, भाई, वो आपको बताएगा कि उमर कितनी उमर मेहनत लगती है एक प्लेयर बनने में, और जिसने 20 साल 25 साल स्ट्रगल किया हो ना, उसको कितनी मेहनत लगती। तो ये चीजें बिल्कुल। तभी बोलती है, मैं स्टेट के लाव के लिए हम बोलते हैं, हमारा अंदर ये है कि हम लास्ट कर में सकते हैं। लेकिन थोड़ा हर साल हाँ अब। पार्टिसिपेशन ही होता है, हम वो होते अचीवमेंट्स क्यों नहीं लाते। जब हम जाते हैं ना, देखो आबिद और मैं जब जाते हैं ना बाहर खेलने किसी भी टीम से, तो जब हम वहां पे जीतते हैं ना,
तो लगता है यार ये स्टेट के लिए भी हम कर सकते थे, लेकिन अफसोस ये है कि यार वहां हुआ नहीं। अब चाह रहे हैं कि ये लोग करें, हम जितना भी हो सके हम उतना कर सकते हैं इसके लिए, बट अब वो काम करने दे, मतलब इंसान का यही है कि नहीं यार कुछ करते हैं हम इस चीज के लिए, क्योंकि हम भी देखते हैं, हम भी देखना चाहते हैं कि हमारी टीम J&K विनर्स हो, हमारे भी प्लेयर्स आगे खेले, तो अच्छा लगता है। आपको खुद पता है लास्ट ईयर आप कितने एक्साइटेड थे जब हमारा उधर हो गया सिलेक्शन, तो जब इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, ये तो ऑब्वियस ही है। तो इंसान का यही रहता है, मतलब जब अपना बच्चा खेलेगा हाईएस्ट लेवल तो कौन खुश नहीं होगा। और हाँ आबिद, आपके लास्ट वर्ड्स और उसके बाद हम कंक्लूड। मैं लास्ट में, आप जाते जा रहे हैं, क्रिटिसिज्म तो बहुत हो गया, अब मैं खाली एक बच्चों के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे एकेडमी के बच्चे भी देखते होंगे। मैं खाली एक चीज बोलूंगा, जितनी आप मेहनत करोगे ना वो कभी भी जाया नहीं जाएगी। आप मेहनत करते रहो, अल्लाह देख रहा है, वो खुद ब खुद उस मेहनत का फल मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। जो भी जूनियर हमारे आ रहे हैं, जो भी हमारा फ्यूचर आ रहा है, आप अगर किसी भी चीज में आपको दिल से आप मेहनत करोगे ना, अल्लाह ताला देख रहा है और वो उसका फल जरूर देगा। बिल्कुल। आबिद और उमर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मोहसिन भाई, थैंक यू, हमें बुलाने के लिए बहुत मजा आया। और आगे ये एक्सरसाइज होती रहेगी। सबसे अच्छी बात ये है कि आप बोलने देते हो, आप बीच में रोकते नहीं हो, तो ये बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आप दोनों को टाइम दिया, और हमारा भी मन हल्का हो गया। हाँ, और भी आगे डिस्कशंस करते रहेंगे। थैंक यू इंशाल्लाह। चलो फिर से और समी भाई को भी बुला लो किसी दिन, उसको भी रखेंगे। हाँ, और बाकी प्लेयर्स को भी आने की जरूरत है, आगे आने की जरूरत है। जब आप जैसे फॉर्मर प्लेयर बात करेंगे तभी तो कुछ होगा। देखो जब तक गलत प्लेयर्स सामने नहीं आएंगे, पर्सनल तो किसी के साथ नहीं है, बस यही है कि हम भी चाहते हैं हमारी स्टेट अच्छा करे, बाकी कोई देयर इज नो पर्सनल है, वो सच है। बस हम यही बोलते हैं कि उनका ही वही जो डिसाइड कर रहे थे, आप उसी को डिफरेंट यू टर्न ले लिया, उस चक्कर में हम देख रहे हैं, बाकी तो कोई ये नहीं है। चलो इंशाल्लाह, फिर से आप थैंक यू। फिर से आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए, और करते रहेंगे लाइव डिस्कशंस सब चीजों पे। Thanks to our audience also. Thanks for tuning in. Keep following KSW, and we will bring to you more programs in the future. Thank you for joining.